Hello students, good morning. How are you? So, our running chapter is chapter number 8, binomial theorem. And today's first sum, exercise 8.2, 12th sum. Find a positive value of small m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x whole raised to m is 6. So students, we have to find a value of small m, okay, and we have given one thing which is coefficient of x square, which is 6 we have given. So use this data, we find out the value of small m. So let's see. Answer here, 1 plus x whole raised to m be given, in which the value of small a, which is 1, the value of small b, which is small x, and the value of small n, small m. Now we know that we know that the general term of binomial theorem, which is GR plus 1 is equals to NCR a raised to n minus r b raised to r. Put all these three values in this general term, we get TR plus 1 is equals to MCR 1 raised to n minus r, so we get 1, and the value of b, which is x raised to r. Now it is given that the coefficient of x square, the coefficient of x square given is equals to 6. Now what is the answer of coefficient of x square? We just put in this general form r is equal to 2, मतलब r is equal to 2 हमें just ये general form में put करना है. So we get x square here, and in a multiplication, the meaning of coefficient, that means the term which is multiplied by x square, मतलब x square के साथ जो भी कोई constant term multiple में होगा वो हमारा होगा coefficient of x square. If we put r is equal to 2 here, then we get MC2, which is a coefficient of x square. So we may write MC2 is equals to 6. We know the formula of combination, which is m factorial divided by 2 factorial and also m minus 2 factorial is equals to 6. The answer of 2 factorial, which is 2, and going in right side and multiply with 6, we get 12. And here, if m factorial, we may write m minus 2 factorial, m minus 1, and obviously into m, and divide by m minus 2 factorial is equals to 6 into 2, that means 12. आपको पता ही है कि 100 factorial का हम 2, 3 या कई तरह से लिख सकते हैं. 99 factorial into 100, 98 factorial into 98 factorial into 99, 100. सो ये आपका वही है, हमारे पास 100 factorial है, उसको हमने 98 factorial into 99 into 100 हमने कन्वर्ट कर दिया. सो कैंसल m minus 2 factorial from numerator and denominator, we get m minus 1 is equals to, अगर हम 12 को स्प्लिट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो क्या है, हमारे पास m into m minus 1 है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के 2 नंबर हमें दिए हैं, m into m minus 1, दैट मीन्स द 2 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अंडरस्टैंड? मतलब अगर ये m की वैल्यू आपके पास 5 होगा तो ये आपका 4 होगा, मतलब आप देख सकते हैं 4 into 5 जो कि असेंडिंग ऑर्डर के नंबर्स है, या हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं, बराबर ना. तो 12 में ऐसे कोई 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको 12 मिले और जो 2 नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, दैट इज 4 and 3, बिकॉज 4 3s are 12 और 3 4s are 12. नाउ कंपेयर ऑन बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी, वी गेट m is equals to 4 और m minus 1 is equals to 3. सो दैट इम्प्लाइज m is equals to 4. तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज मिलेगी, एक m is equal to 4 मिलेगा और m minus 1 is equal to 3, और दोनों केस में हम m is equal to क्या मिलेगा, हमें 4 ही आंसर मिलेगा. समझ में आ गया? m into m minus 1 is equal to 4 into 3. अगर ये m 4 होगा तो m minus 1 ऑब्वियसली 3 ही होगा, क्योंकि 4 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 3 मिलेगा. सो आई थिंक होप आपको समझ में आ गएगा. होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ m is equal to 4. Example number 5.
find small a if 17th and 18th terms of expansion 2 plus a whole raised to 50 are equal. क्वेश्चंस में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है, जो 17th सम है टर्म है और 18th टर्म है, दोनों क्या हमारे पास इक्वल है, और यूज दिस डेटा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. मतलब ये स्मॉल जो बी के प्लेस पर है स्मॉल ए, उसका आंसर क्या होगा, हमें ये जो हिंट दिया है या क्वेश्चन में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे. सो आंसर में हियर 2 plus a whole raised to 50 be given. Therefore, what is the value of small capital A? That means 2. B is equals to a, and also small n is equals to 50. Students, you have a question that why we use a capital letters, because the small letter is used in our expansion. That's why we take a capital values of small a and small b. Okay, and n is equal to 50. Now we know that we know that the general term of our binomial theorem, which is tr plus 1 is equals to ncr, capital A raised to n minus r and capital B raised to r. Put a, b and n, the value of a, b and n in this given form, we get tr plus 1 is equals to 50 cr 2 raised to 50 minus r and also a raised to r. Now it is given that what we have given, t17 is equals to t18, बराबर ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 17th टर्म एंड 18th टर्म दोनों कैसे हमें इक्वल दिया है, तो ऑब्वियसली t17 एंड t18 दोनों इक्वल आएगा. नाउ कंपेयर विथ अवर जनरल टर्म और जनरल फॉर्म. ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ r विच इज 16, बिकॉज आपको पता ही है कि हमें जितना जो भी हमें टर्म दिया होगा, बराबर ना, और जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना होगा, ओके, तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी, एक नंबर लेस होगी. मतलब 17th टर्म है तो r की वैल्यू हमें 16 मिलेगी. So put r is equal to 16 in this general form, we get 50c 16 2 raised to 50 minus 16 a raised to 16 equals to, एंड 18th टर्म में r इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसको हम टी आर प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे, देन वी गेट t17 प्लस 1. सो 50 c17 2 raised to 50 minus 17 and obviously a raised to 17. So here a raised to 16 कैंसल, यहाँ पे एक रहेगा, और इसके हमारे पास फॉर्मूला है 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल एंड 34 फैक्टोरियल. 2 raised to 34 is equals to 50 factorial divided by 17 factorial 33 factorial 2 raised to 33. सो यहाँ पे 2 raised to 33 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 raised to 34 के साथ, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल 2 हमें मिलेगा, और 50 फैक्टोरियल ऑब्वियसली कैंसिल, और यहाँ पे a है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट टू 17 है, यहाँ पे 16 कैंसिल हो जाएंगे. चलो ये a को हम यहाँ पे रखेंगे, और ये दोनों डिनोमीटर है उसको इक्वल के इधर साइड शिफ्ट करेंगे. वी गेट 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल a. सो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू, अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 16 फैक्टोरियल इंटू 17 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2 एंड होल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 34. So finally we get 33 factorial cancel, 16 factorial and 17 2s are 34. That implies a is equals to, we get finally 1. I think आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी है. ओके, एक्सरसाइज 8 थर्ड सम, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 इन द प्रोडक्ट 1 plus 2x raised to 6 into 1 minus x whole raised to, कितना है हमारे पास, 7, यूजिंग बाइनोमियल थियरम. चलो हमें क्या करना है, ये दोनों हमारे पास एक्सपांसन दिए है, इन दोनों का इंडिविजुअल हमें क्या करना है, एक्सपांसन मतलब एक्सपांड करना है ये इन दोनों का यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 plus 2x raised to 6 का
जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सिमिलरली 1 माइनस एक्स रेज टू 7 का भी लिख देंगे। ओके, अभी उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाले उसका फर्स्ट टर्म होगा ना, उसको 1 माइनस एक्स रेज टू 7 के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसका सेकंड टर्म, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। तो हमें टोटली यहाँ पे 7 टर्म्स और यहाँ पे 8 टर्म, दैट मीन्स 8 इंटू 7 मतलब हमें 56 टर्म्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। ओके, और उसमें से जो भी एक्स रेज टू 5 वाला जो भी टर्म होगा, ओके, एक्स रेज टू 5 वाला जो भी टर्म होगा, ओके, तो सिर्फ हमें उस पर ही फोकस करेंगे और उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा जो भी कांस्टेंट, सिर्फ उसका हमें एडिशन करना है। सो लेट सी आंसर हियर। 1 plus 2x whole raised to 6 is equals to 6c0 1 plus 6c1 2x plus 6c2 2x whole square plus 6c3 2x whole cube plus 6c4 2x raised to 4 plus 6c5 2x raised to 5 plus 6c6 2x raised to 6 and also 1 minus x raised to 7 is equals to 7c0 1 raised to 7 माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, सो प्लस माइनस हमारी फॉर्मूला 7c1 x प्लस 7c2 x स्क्वायर प्लस माइनस 7c3 x क्यूब प्लस 7c4 x raised to 4 minus 7c5 x raised to 5 plus 7c6 x raised to 6 and minus 7c7 x raised to 7। सो यहाँ पे टोटल हमें कितने 56 टर्म्स अब दिख रहे हैं। 7 टर्म्स यहाँ पे और 7 टर्म्स यहाँ पे और 8 टर्म्स, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 15 टर्म्स है। सॉरी स्टूडेंट्स, सो अभी हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। ये 1 को ये सभी कितने 8 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को ये 8 टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म को ये सभी 8 टर्म के साथ, मतलब ये 1 बाई 1 सभी टर्म को हम क्या करेंगे, सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना। तो हमें टोटल 56 टर्म मिलेंगे। उसमें से सिर्फ हमें फोकस करना है एक्स टू 5 वाले टर्म्स में। ओके, उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में उसका कोएफिशिएंट सिर्फ हमें उसका एडिशन करना है। मतलब हमें अभी क्या करना है, 56 टर्म्स यहाँ पे हमें लिखना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत लंबा सम हो गया ना, और कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ये सम को हम थोड़ा इजी कर देते हैं। कैसे इजी कर देंगे, अभी यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ फोकस करना है एक्स टू 5 वाले टर्म में। तो ये 1 है, तो अभी सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें सभी के साथ क्या मिलेगा, मतलब ये जो टर्म्स है वही सेम एज मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स टू 5 वाले टर्म पर फोकस। तो ये टर्म ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक्स टू 5 वाला टर्म कौन सा मिलेगा, -7c5 मिलेगा। सो देयरफॉर नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू 5 इज इक्वल्स टू -7c5 फर्स्ट टर्म में मिलेगा। चलो उसके बाद अब ये सेकंड टर्म ये सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट x टू 5, विच टर्म वी गेट x टू 5, बिकॉज यहाँ पे x टू 1 है, बराबर, और यहाँ पे हमें x टू 4 वाला टर्म हमें देखना है, बराबर ना। ये x टू 4 क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x टू 1 प्लस 4 वी गेट x टू 5। मतलब इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है कौन सा है, एक तो 6c1 है इंटू 2 एंड 7c4। सो वी गेट प्लस 2 इंटू 6c1 7c4। उसके बाद माइनस, अभी ये थर्ड टर्म की बारी, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ओके, सो ये टर्म को ये सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स टू 5 वाला टर्म कौन सा मिलेगा। सो हियर एक्स स्क्वायर एंड वी वांट टू फाइंड एक्स क्यूब, जो एक्स क्यूब वाला टर्म है वो मतलब -7c3 वाला टर्म, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे 3 है। सो वी गेट एक्स टू 5 मतलब 2 दैट मीन्स 4। सो -4 6c2 एंड यहाँ पे कौन सा है हमारे पास -7c3 मतलब 7c3। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा प्लस वाला। अभी नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब वाला है ना, तो हमें कौन सा एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, 7c2 वाला, और यहाँ पे 2 क्यूब दैट मीन्स 8। सो 8 6c3 7c2 वाला दिखा, समझ में आ गया।
उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे x⁴ वाला टर्म है। सो ये सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ फोकस करना है x वाले टर्म पर, क्योंकि वही हमें x⁵ मिलेगा, क्योंकि x⁴ एंड x⁴ मतलब हमें कौन सा टर्म पर फोकस करना है। सो 2⁴ दैट मीन्स 16 माइनस 16 6c2 6c4 एंड 7c1। समझ में आया, क्योंकि 7c1 वाला हमारे पास x। और उसके बाद ये जो हमारा टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6 वाला 6c5 x⁵ है, तो इसके साथ हमें कौन सा टर्म चाहिए मल्टीप्लीकेशन, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब 7c0 वाला टर्म। सो 2⁵ दैट मीन्स वी गेट प्लस 32 6c5 एंड 7c0। कैसा लगा? 56 टर्म्स के जगह हमें कितने टर्म्स में कंप्लीट कर दिया? 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें दोनों के जो भी एक्सपांसन है हमें मिले, टर्म करने के बाद हमें 56 टर्म्स हमें मिलेंगे, उस पर हमें सिर्फ फोकस करना है x⁵ वाले। सो हम जब मल्टीप्लाई करने ही जा रहे हैं, सो सिर्फ हम x⁵ वाले टर्म को ही सेपरेट करके क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो इजी हो जाएगा ना। सो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो दैट इम्प्लाइज और दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे -7c5 का आंसर मुझे मिलेगा -7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 6c1 का आंसर ऑब्वियसली 6 मिलेगा। सो वी गेट 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल दैट माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8 है, इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल माइनस 16 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 7c1 का आंसर ऑब्वियसली 7 ही होगा, वो तो हमें पता ही है, इंटू 7 प्लस 32 6c5 that means last second combination, and we know that the second combination and the last second combination both answer are equal. Okay, so the answer of 6c1, the answer of 6c1 we get 6. So similarly the last second combination that means 6c5 also we get 6. So यहाँ पे 6 मिलेगा और 7c0 का आंसर तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। सो दैट इम्प्लाइज -7 फैक्टोरियल का मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 7 एंड डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 12 इंटू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल 5 6 एंड 7 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 1 2 3 माइनस 4 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 6 7 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 एंड 3। उसके बाद प्लस 8 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल 4 5 6 डिवाइड बाई 1 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल 6 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 16 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 and into 7 also and plus 32 into 6 that means we get 192. So यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का आंसर 4 फैक्टोरियल का आंसर 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 3 जा 6 so we get -21 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 5 into 7 into 12 we get plus 4 2 0 because 12 5s are 60 and 6 7 42 and also 0 minus 2 2s are 4 3 2s are 6 so 2 into 5 10 60
into 5, 300 into 7, that means minus 2100 plus 3 2s are 6, 2 3s are 6. So we get 7 into 3, 21, 21 into 5 into 4 into 8. So we get answer is 3360 minus 2 8s are 16, 8 into 5 into 6 into 7, we get 1680, and finally plus 192. Now addition the positive numbers. Okay, the addition of 40 positive number, that means 420 plus 3360 and plus 192. So we get 3972 minus, and the addition of negative number, minus 21 minus 2100 minus 1680, 3801. So finally the answer is 171. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन में भी. ओके, सो ये जो भी आपके सामने दिख रहा है सॉल्यूशन, इसको आप शांति से एक बार देख लो. नेक्स्ट हम आपके लिए होमवर्क में है एग्जाम्पल नंबर 13. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ इन द प्रोडक्ट 1 + 2 a⁴ 2 - a⁵ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. सो आपको क्या करना है, अभी जो हमने प्रीवियस हम किया सेम एज उसको ही फॉलो अप करके इसका आंसर लाना है. इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वो आपको लिखना है. a⁴ है मतलब हमें 5 टर्म्स मिलेंगे. यहाँ पे a⁵ है, दैट मीन्स वी गेट 6 टर्म्स. और दोनों को मल्टीप्लाई करते करते हमें कौन से टर्म पर फोकस करना है, a⁴ वाले जो भी टर्म है उस पर हमें फोकस करना है. और a⁴ वाले जितने भी टर्म होंगे उसमें जो भी कोएफिशिएंट होगा, ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों के बराबर दोनों. अभी सपोज यहाँ पे a⁴ वाला टर्म है तो हमें यहाँ पे a वाला टर्म पर फोकस करना है. सपोज यहाँ पे a² है तो हमें यहाँ पे a² वाला टर्म पर फोकस करना है. सपोज यहाँ पे a है तो हमें a³ वाले टर्म पर फोकस करना है. और दोनों के टर्म फोकस करने के बाद दोनों के जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सेपरेटली लिख के फाइनल उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी करना है वो आपको कर देना है. सो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर देंगे ऐसे में एक्सपेक्टेशन रखता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो ये होमवर्क का समय आप एक बार देख लो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज middle terms. So remark that next topic is middle terms. We have two cases to find middle term in the expansion a plus b raised to n. मतलब हमारे पास दो केस है बराबर ना, मिडल टर्म फाइंड करने के लिए. किसके लिए, a plus b raised to n के लिए बराबर ना. क्यों हमारे पास दो केसेस है, फर्स्ट वन क्या होगा तो हमारे पास n ऑड नंबर होगा और सेकंड केस में n इवन नंबर होगा. मतलब जो रेज टू n है ना उस पर डिपेंड है हमारा मिडल टर्म बराबर, कि n हमारा ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है. आपको पता ही हो गया आगे हमने जो सम्स किए a प्लस बी मतलब x प्लस 3y x प्लस y बाई 2 x प्लस 1/x रेज टू आपने ऑब्जर्व किया होगा. कई बार 4 हुआ था, कई बार 5 हुआ था, कई बार 6 हुआ था, कई बार 7 हुआ था बराबर ना. तो जब हमारे पास ऑड नंबर होगा बराबर ना, दो केसेस में थे. फर्स्ट केस नंबर 1, इफ n इज ऑड नंबर दैट मीन्स इफ वी हैव n इज इक्वल टू 3 5 7 9 something numbers, then we have two middle terms. Okay, then we have two middle terms, and which is the first one is n plus 1 by 2th term, and obviously second one is n plus 1 by 2 plus 1th term. मतलब जो भी n इज इक्वल टू हमारे पास 3 5 7 9 समथिंग होगा तो उसको हमें क्या करना है, ये दो जो फॉर्मूला है उसमें हमें पुट कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो टर्म हमें फाइंड आउट करना है. मतलब सपोज मेरे पास 5 है, सो 5 plus 1 by 2 6 by 2 दैट मीन्स थर्ड टर्म, एंड ऑब्वियसली 3 plus 1 दैट मीन्स फोर्थ टर्म. मतलब हमारे पास अगर ऑड नंबर होगा देन वी गेट टू मिडल टर्म्स, एंड इफ वी हैव n इज इक्वल टू 5 देन वी गेट थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. सिमिलरली केस नंबर 2, इफ n इज इवन नंबर देन वी हैव वन मिडल टर्म. मतलब अगर आपके पास n इज इक्वल टू मतलब जो पावर है रेज टू 4 6 8 या 10 समथिंग आपके पास नंबर होगा n इज इक्वल टू, देन वी हैव द फॉर्मूला वी हैव वन मिडल टर्म. मतलब हमें एक ही मिडल टर्म मिलेगा विच इज n by 2 plus 1/3 term, and if we have n is equal to 6 then we get 6 by 2 that means 3 plus 1 we get fourth term which is our middle term. समझ में आ रहा है? Okay, so this is the formula for odd number, this is the formula for even number to find out the middle terms. So first one is exercise 8.2 seventh sum. Find the middle term of 3 minus x cube by 6 whole raised to 7.
तो हमारे पास एक ऐसा एक्सपांसन है, उसमें ए बी और एन इज इक्वल टू दिया है, एन इज इक्वल टू 7 है, मतलब हमें इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एन की बात करते हैं, एन पर फोकस करेंगे। सो इफ यू फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ एन, so you can observe that the value of n which is a odd number, then we must get a two middle terms। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये और ये दोनों मिडल टर्म हमें मिलेंगे, और वो जो भी टर्म आएगा, वॉट एवर फोर्थ या फिफ्थ टर्म होगा, थर्ड या फोर्थ टर्म होगा, वॉट एवर जो भी टर्म होगा, तो वो फाइनली हमें वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा वो। सो लेट स्टार्ट आंसर हियर 3 minus x cube by 6 whole raised to 7 is equals to 3 plus minus x cube by 6 whole raised to 7 be given. So a is equals to we have 3, b is equals to we have minus x cube by 6, and also obviously n is equals to 7, which is odd number. So we have, therefore we have two middle terms. The first one, therefore first middle term is equals to n plus 1 by 2 the term, and second empty, that means middle term is equals to n plus 1 by 2 and plus 1th term. So this equals to n is equal to 7, so put here, so n is n plus 1 by 2 the term, and here 7 plus 1 by 2 plus 1th term. So finally we get this is fourth term, and here we get fifth term। मतलब हमें कौन से टर्म फाइंड आउट करने हैं, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने हैं और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने हैं। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब हमें T4 और T5 दोनों फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये जो हमारे पास एक्सपांसन है, ओके, इसमें टोटल 7 है, मतलब 8 टर्म हमें मिलेंगे। सो मिडिल टर्म कौन कौन से है, T4 और T5 होंगे, और वो कौन से टर्म होंगे, ओके, उसका आंसर क्या होगा वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट सी, सबसे पहले हम बात करेंगे T4 की। सो उसके पहले हमारे पास ए बी और एन की वैल्यू है, उससे हम जनरल फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। नाउ वी नो दैट TR plus 1 is equals to NCR A raised to n minus R and B raised to R. So that implies TR plus 1 is equals to, we have the value of small n which is 7CR, the value of A 3 raised to 7 minus R, and the value of B minus x cube by 6 whole raised to R. So now इसको थोड़ा मॉडिफाई करके और थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वी गेट 7CR 3 raised to 7 minus R minus 1 raised to R x raised to 3R and divide by 6 raised to R. So give it result number capital A. चलो अभी क्या करेंगे, कैपिटल ए में हम सबसे पहले R इज इक्वल्स टू कितने 3 पुट करेंगे, और उसके बाद R इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, क्योंकि इफ यू वांट टू फाइंड अ फोर्थ टर्म देन वी मस्ट put R is equal to 3, and obviously and also if we want to find fifth term then we must put R is equal to 4. So A implies T4 is equals to, we convert into R plus 1 form, so we get 3 plus 1 7C3 3 raised to 7 minus 3 minus 1 raised to 3 x raised to 3 into 3 9 and 6 raised to 3. So that implies T4 is equals to minus 1 raised to 3, तो हमें माइनस ही मिलेगा। So minus 7 factorial divided by 3 factorial 4 factorial 3 raised to 4 x raised to 9 and 6 raised to 3. चलो that implies T4 is equals to minus 4 factorial into 5 into 6 into 7 divided by 1 into 2 into 3 into 4 factorial 3 into 3 into 3 into 3 into x raised to 9 divided by 6 into 6 into 6. So 4 factorial cancel, 3 2 is 6 cancel, so 6 3 2 is 6,
3 टू ज़ा 6 एंड 3 टू ज़ा 6. सो आप देख सकते हैं. तो फाइनली वी गेट T4 इज इक्वल्स टू minus 6 5 ज़ा 35 into 3 we get minus 105 x raised to 9 and divide by 2 we get 8. So this is your fourth term in the expansion which we have given in our question. Now we find the fifth term, that means capital A implies T5 is equals to T, 4 plus 1 is equals to 7C4, 3 raised to 7 minus 4 minus 1 raised to 4 x raised to 3 4 are 12 and divided by 6 raised to 4. T5 is equals to 7 factorial divided by 4 factorial, 3 factorial, 3 raised to 3 minus 1 raised to 4, that means we get 1, and x raised to 12 divided by 6 raised to 4. So that implies T5 is equals to 4 factorial 5 6 7 divided by 4 factorial 1 2 and 3 into 3 into 3 into 3 divided by 6 into 6 into 6 into 6 x raised to 12. 3 to the 6 cancel, 4 factorial cancel, 3 to the 6, 3 to the 6 and 3 to the 6. So finally we get T5 is equals to 5 7 is 35 and divide by 2 into 2 into 2 8 6 are 48 and x raised to 12. So this is your fifth term in the expansion which we have given in our question. So I think आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास n ऑड नंबर है देन वी गेट 2 मिडल टर्म्स और उसकी फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड द सेकंड वन इज n प्लस 1 बाई 2 and plus 1th term. So n is equal to put 7 here, so we get 4th and 5th term. And finally we know that the general term of our binomial theorem a plus b raised to n, which is tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus b raised to r. Put a, b and n in this form, we get tr plus 1 is equal to 7cr. एंड इसको मॉडिफाई करने के बाद हमें जो भी स्टेप मिलेगा उसको हम कैपिटल ए बोल देंगे. एंड देन वी पुट r is equals to 3 for finding 4th term, and similarly we put r is equal to 4 for finding 5th term. और जो भी कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है तो उसको एक बार आप शांति से देख लो. Exercise 8.2 8th sum. Find the middle term of x by 3 plus 9y whole raised to 10. Answer: here x by 3 plus 9y whole raised to 10 be given. So we have the value of small a is equals to x by 3, value of small b is equals to 9y, and the value of small n is equals to 10, and which is even number. Therefore we have one middle term, so one empty. So therefore nt is equals to n by 2 plus 1th term. समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ एक ही मिडल टर्म मिलेगा और उसकी फॉर्मूला n by 2 plus 1th टर्म. सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो 10 by 2 plus 1th term. So finally we get 6th term. So we know that tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. Put a, b and n in this equation. We get tr plus 1 is equals to 10cr, the value of a, that means x by 3 whole raised to 10 minus r, the value of b which is 9y raised to r. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, tr plus 1 is equals to 10cr x raised to 10 minus r, 3 raised to 10 minus r, 9 raised to r and y raised to r. डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं. सो द पावर इज नेगेटिव टर्म. 3 raised to 10 minus r है, सो न्यूमरेटर में ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 raised to minus bracket 10 minus r. सो वी मे राइट 3 raised to r minus 10. tr plus 1 is equals to 10cr x raised to 10 minus r, 3 raised to r minus 10, 3 raised to 2r, y raised to r. Because 9, that means 3 square, and the power
raised to power, that means the multiplication of both power. So r into 2, that means 2r. So that implies finally we get the general term which is 10 CR x raised to, x को बाद में लिखते हैं, सबसे पहले 3 वाला लिखते हैं 2r plus r, that means 3r minus 10 x raised to 10 minus r y raised to r. So this is your capital result A. Therefore capital A implies we have to find sixth term. So the value of small r which is we get 5. So r is equal to 5, put in result capital A, we get T6 is equals to T 5 plus 1 is equals to 10C5 3 raised to 15 minus 10 x raised to 10 minus 5 y raised to 5. So that implies T6 is equals to 10 factorial, here add 5 factorial into 5 factorial 3 raised to 5 x raised to 5 y raised to 5. So that implies T6 is equals to 5 factorial 6 7 8 9 and 10 divided by 5 factorial 1 into 2 into 3 into 4 into 5 3 raised to 5, that means we get 3 into 3 into 3 into 3 into 3 x raised to 5 y raised to 5. So 5 factorial cancel, 3 to the 6 cancel, 5 to the 10 cancel, 4 to the 8 cancel. So finally we get T6 is equals to, we have 7 to the 14 28. सो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होगा तो उसका सो मेरे पास आंसर है कितना है 61,236 x raised to 5 y raised to 5. So this is your final answer, the sixth term. I hope you understand. अगर आपके पास odd number है so we get 2 middle terms and even number है तो हम we get 1 middle term. So ये आप देख लो एक बार सॉल्यूशन. अभी आपके लिए 2 सम में होमवर्क में दे रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन मिडल टर्म्स. द फर्स्ट वन होमवर्क विच इज टीम, ऑब्वियसली बोथ आर टीम, दैट मीन्स हमारे बुक के सम नहीं है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके सम नहीं है, बाहर के हैं जो आपके लिए मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है. फाइंड द मिडल टर्म ऑफ 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 रेज टू 7. फाइंड द मिडल टर्म ऑफ 2x बाई 2 प्लस 3 बाई रेज टू 8. मतलब एक हमारे पास ऑड नंबर है, दूसरा इवन नंबर है. तो सेम एज प्रीवियस जो हमने 2 सम्स कंप्लीट किए उसको ही फॉलोअप करके ये आपको कंप्लीट कर देना है. अभी स्टूडेंट्स आपको एक बात मैं समझा देता हूँ कैसे. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाई वी टेक अ 2 मिडल टर्म्स फॉर n इज इक्वल टू ऑड नंबर. बिकॉज सपोज हमारे पास x प्लस वाई रेज टू और a प्लस बी ले लेते हैं, रेज टू हमारे पास 5 है, और दूसरा हम ले लेते हैं a प्लस बी रेज टू हमारे पास 6 है. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, सो वी गेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6. मतलब हमें कितने 6 टर्म्स मिलेंगे. सिमिलरली इफ वी हैव n इज इक्वल टू 6 देन वी गेट 7 टर्म्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7. सो आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड एंड लास्ट थर्ड. तो आप देख सकते हैं बीच में 2 टर्म हमें मिल रहे हैं, बराबर ना. सेकंड को फर्स्ट को हमने कैंसिल किया, सेकंड और लास्ट सेकंड को भी कैंसिल किया, तो आप देख सकते हैं बीच में हमारे पास 2 टर्म्स है. इसलिए अगर हमारे पास ऑड नंबर होगा, ओके, सो हमारे पास मिडल में 2 टर्म हमें मिलेंगे, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. समझ में आ रहा है. अगर आपके पास 7 होगा तो हमारे पास कौन कौन से टर्म मिलेंगे. सो वी गेट 4 एंड 5th टर्म, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म ऐड हो जाएंगे. कौन से टर्म, 7 एंड 8 टर्म, बराबर ना. n इज इक्वल टू 7 होगा तो हमारे पास टोटल 8 टर्म मिलेंगे, और 8 टर्म में हमारे पास मिडल में कौन सा होगा, तो 4 एंड 5 होगा. So the middle terms which are 4th and 5th term. And similarly if we have n is equal to 6 मतलब even number होगा. So आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लास्ट कैंसल, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट थर्ड. तो आप बीच में आपको सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, बराबर ना. बाकी पहले 3 और लास्ट में 3 तो हम निकाल देंगे, तो एग्जैक्ट हमें बीच में एक ही टर्म मिलेगा. That's why we can say that we get or we have one middle term for n is equal to even number. आप देख सकते हैं 6 होगा तो हमारे पास मिडल सम सिर्फ 4th टर्म ही मिलेगा. अगर हमारे पास 8 होगा सो यहाँ पे 2 नंबर ऐड कर देंगे, वी गेट 8 एंड 9. सो आप देख सकते हैं पहले 4 कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट 4 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा T5. मतलब 5th टर्म जो होगा वो आपका मिडल टर्म आपको मिलेगा. सो आई थिंक आपको अभी कोई डाउट्स नहीं होंगे, सभी डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि वाई वी टेक
2 middle term for odd number and why we take a 1 middle term for even number, बिकॉज आपको पता ही है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट टाइम 1 by 1 हम कैंसिल करते गए तो ऑड नंबर के लिए 2 मिडल टर्म रह गए, बराबर, रिमेन 2 मिडल टर्म्स, एंड इवन नंबर होगा तो कैंसिल करते करते हमारे पास सिर्फ एक ही मिडल टर्म रह गया. सो दैट्स वाई वी टेक दिस वन. तो ये दोनों होमवर्क के लिए आपको सब मैं दे रहा हूँ, जो आप कंप्लीट कर देना स्टूडेंट्स, बराबर ना, इतना आप काम कर लेंगे ना. ओके, इजी है ना. कैसा लगा मिडिल टर्म आपको, मज़ा आया? और उसके पहले जो हमने 3 सम्स किए, 3 नहीं 4 सम्स, बिकॉज एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था. ओके, सो आज हमने काफ़ी सम्स कंप्लीट कर दिए, बिकॉज आज हमने 4, 6 और ये मतलब 8 सम्स, इसके साथ हमारे पास 8 सम्स आज हमने कंप्लीट किए हैं, बराबर. सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब हम नेक्स्ट जो भी सम्स है वो हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टाइम हमारा, अभी हमारे पास 14-15 सम्स रिमेनिंग है, बराबर ना, तो उसको हम 2 या 3 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी सम्स बाकी है वो सभी के सभी लेंथी सम्स है, मतलब बहुत लंबे सम है, बराबर. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, तब तक के लिए सभी होमवर्क के सम कंप्लीट कर देना, और तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.